So good morning to everyone. For today's topic, we are going to cover varactor diode. It is a special PN junction diode in which a PN junction capacitance is controlled using reverse bias voltage. This is also a type of PN junction diode. In the last lecture, we cover a Schottky diode, which is not a PN junction diode. That was a metal and N-type semiconductor junction diode. But this one is a normal PN junction diode, which is heavily doped, and it is mostly used for reverse bias conditions in which PN junction capacitance is controlled. Here, the PN junction capacitance can be controlled by using this varactor diode. Due to this, it has various names also. So when diode is forward biased, current will flow through the diode. As we know, when it is forward biased, the current will flow in one direction, that is in forward direction. And when the diode is reverse biased, it changes in PN semiconductor and draw away from the PN junction interface and hence form the high resistance depletion zone. As we increase the voltage in PN junction, in case of reverse bias condition, the depletion region start increasing. As the depletion region start increasing, it forms a high resistance depletion zone, which act as in later on it act as in capacitance also. So that's why this is also known as variable capacitance in diode and also known as tuning diode. इसको हम variable capacitance भी बोलते हैं या tuning diode भी बोलते हैं. इसके बहुत सारे और भी नाम है. Varactor diode can always remember it can be also known as variable capacitance or a tuning diode. Okay, now come to the symbol. This is a symbol for your varactor diode. This is how it can represent. There are two lines in front of this triangle. These two lines represent the PN junction diode as a capacitance. Always remember, जब भी varactor diode की बात होगी तो आप capacitance से link करोगे इसको, और तभी हमने इसके आगे दो पैरेलल प्लेट्स की तरह हम जैसे लगाते हैं कैपेसिटेंस में, इसमें भी सिंबल उस तरह से लगाया है. जैसे आपका पीएन जंक्शन में होता है, ये साइड आपका एनोड होता है और ये साइड आपका कैथोड होता है. ठीक है. अब इसमें कैपेसिटेंस का कंसेप्ट इसलिए यूज आता है, तो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट यूज आता है इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है बेसिकली is defined as C is equal to EA by D. This is the capacitance of any capacitor, generalized capacitance, where E is a permittivity constant, A is the area, and D is the distance between the two plates. ठीक है, डायलेक्ट्रिक के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ए हो गया. पूरा का पूरा एरिया कितना आपका कंज्यूम कर रहा है. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. बट व्हेन वी कंसीडर हियर अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. You can see it at p side there are positive holes and in n side there are negative electrons majority. ठीक है, और सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होता है? डिप्लीशन रीजन, जहां से आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है? डिप्लीट किया जाता है. तो ये एरिया जो है वो किस तरह एक्ट करता है? आपके डाइलेक्ट्रिक की तरह. और ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये जो आपका बनाएगा एक सेट बनाएगा, ये एक तरह से क्या बनाता है? कैपेसिटर का सेट बनाता है. दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक, एक साइड पे पॉजिटिव एक नेगेटिव. सो एक तरह से कैपेसिटर्स का बनाता है, कैपेसिटर की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होता है? ये डिप्लीशन रीजन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके कारण क्या होता है? इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करना शुरू कर जाती है. एज वी नो, कैपेसिटेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज. जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ती जाएगी, कैपेसिटेंस आपकी क्या करती जाएगी? कम होती जाएगी. ऑल्सो एक जनरलाइज फॉर्मूला जो हम इसके लिए अंदर यूज करते हैं, दैट इज C नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस V by VF होल रेज टू पावर n, वेयर C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ डायोड जब वो क्या होगा? अनबाइस्ड, जब हमने उसमें कोई आपकी बाइसिंग प्रोवाइड या एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करी होगी. ठीक है. VF क्या होगा? फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये हो गया आपका नॉर्मल वोल्टेज. देन अगर हम वर्किंग ऑफ डायोड की बात करेंगे, ये मैंने दो एक यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका कंसीडर किया है. दो आपके पीएन जंक्शन डायोड्स लिए हैं. सपोज एक रीजन में मैंने 3 वोल्ट सप्लाई की है. अभी आप अरेंजमेंट देख सकते हो बायसिंग. दिस इज अ रिवर्स बायस की हमने बायसिंग प्रोवाइड की हुई है. इसमें पी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, एन को पॉजिटिव के साथ. ये भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट दिया, मतलब कम वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज बढ़ा दिए.
अब क्या होगा, जैसे हम इसमें वोल्टेज देना शुरू करेंगे, मैंने 3 वोल्ट्स दिया, अब यहाँ के होल्स इस नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिप्लीशन रीजन क्या होने लगेगा, वाइड होने लगेगा. सपोज इन दिस केस द डिप्लीशन रीजन, एक सेकेंड होल्ड करना. Similarly, in this case, if we talk about if we increase the voltage like 6 volts in reverse biasing, so what will happen? This depletion region will increase more as compared to this one. तो इसका capacitance level कम होगा, इसका capacitance level ज़्यादा होगा, that is जहाँ पे show किया हुआ है 20 farads, और यहाँ पे कम होगा, that is 5 farads. तो ये एक major difference है अगर हम दो cases consider करेंगे. So यहाँ पे लिखा हुआ है working of varactor diode. To know the varactor diode working principle, we must know the function of capacitor and capacitance. ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स अलाइनड यूज किए हैं एज एन इंसुलेटर. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करी स्लाइड में. नाउ the next is the depletion area between p and n type region can be considered as insulating dielectric. As I told you, it acts as an insulating dielectric, the depletion region. The volume of the depletion region of a diode varies with change in reverse bias. जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग चेंज करोगे, आपका जो डिप्लीशन रीजन का एरिया है या वॉल्यूम है वो चेंज होता जाएगा रिस्पेक्टिवली. If the reverse voltage of a diode is increased, then the size of depletion region increases. If the reverse voltage of a varactor diode is decreased, then the size of the depletion region decreases. Again, the same thing which I explained earlier. By changing the reverse bias of the diode, the capacitance can be changed. जैसे जैसे आप रिवर्स बायस को चेंज करते जाओगे, आपकी कैपेसिटेंस भी आपके डायोड की चेंज होती जाएगी. ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो इसका रिवर्स बायस का मोड अगर हम चेक करेंगे, तो रिवर्स बायस आपका इस तरह से आएगा. ठीक है, पहले आपकी जितनी कम रिवर्स बायस वोल्टेज दी होगी, उतनी आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आपकी क्या होगी कैपेसिटेंस, रिवर्स वोल्टेज की बात है, जैसे आपकी रिवर्स वोल्टेज बढ़ती जाएगी, आपकी कैपेसिटेंस क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी. सो इस तरह से आपको ग्राफ अवेलेबल होगा इन केस ऑफ वैरेक्टर डायोड. With the increase in voltage, your capacitance will decreases because they both are inversely proportional to each other. Talking about the applications of varactor diode, so it is mainly involved in RF design arena. ठीक है, जो भी आपके RF डिजाइन के जहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन होते हैं वहाँ पे आप मोस्टली यूज करते हो. ठीक है, और आप कहाँ यूज करते हो इसको, प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज करते हो. द कैपेसिटर इन द प्रैक्टिकल सर्किट कैन बी चेंज विद द वैरेक्टर डायोड. कहीं भी आपको जहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर की कहीं चेंज करनी होती है, तो आप वहाँ पे यूज करते हो वैरेक्टर डायोड वगैरह. ठीक है, these diodes can be used as frequency modulators and RF phase shifters. These diodes can be used as frequency multipliers in microwave receiver. These diodes are used to change the capacitance in tank LC circuits. So इन सब चीजों में आप इनको यूज कर सकते हो, frequency modulator, RF phase shifters में, microwave receivers में, या tank LC circuits में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ तक आज का वीडियो था. आई होप आपको चीज समझ आई होगी इसकी. थैंक यू.